Good morning, dear students. Dear students, we are doing Unit 2, Section D, and yesterday I have explained you exercise D3, D4. Today I will explain you exercise D5. Let's start. Here are some statements given below. Write who said these to whom and when. सो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई है दिस साइड, और आपको जो देखकर बताना है कि किसने किसको कही और कब बोली गई. ईट माई फ्रूट. सो ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ट्री सेड टू बॉय. सो यू विल राइट ट्री एंड बॉय हियर. When, अब कब बोली गई थी? When he was hungry. जब कौन भूखा था? बॉय जब भूखा था तब उसने ट्री ने उनसे कहा था कि eat my fruit. Number 2. I want a house to live in. So who said these words? The boy said to the tree. Boy ने tree से कहा था I want a house to live in. When, कब कहा था? He was getting married. जब वो शादी कर रहा था. He was getting married. Third, my captain is a cruel fellow. My captain is a cruel fellow. Who said this word? Young man. जो बॉय है अब क्या है वो? यंग मैन बन गया है. यंग मैन said to the tree. यंग मैन है उसने किसको बोला था? ट्री को. So you will write young man here and then tree here. When he wanted his own ship. जब उसको अपनी खुद की शिप चाहिए थी तो उसने ट्री को बोला था कि कैप्टन बहुत क्रूल है और मुझे अपनी खुद की शिप चाहिए. Wanted his own ship. The next one. Make a fire of me. So who said this statement? To whom? Tree. Tree said this statement. Tree ने क्या कहा था और किसको कहा था? Said to the old man. जब young man है वो क्या है? बिल्कुल बूढ़ा हो गया था तब उसको ट्री ने कहा था जब वो कांप रहा था कि मेक अ फायर ऑफ मी. When, कब कहा था? As I told you, the old man was trembling with cold. When old man was trembling with cold. जब ओल्ड मैन ठंड से कांप रहा था. So dear student, here we have done exercise D5. Now I will explain you next exercise of this lesson. D6. Find words in the story which mean the same as given below. First, work individually and then discuss with your partner. So आपको स्टोरी में से जो है वर्ड फाइंड आउट करने हैं सेम मीनिंग वाले
और ये जो है हम इंडिविजुअली करेंगे बिकॉज वी आर एट होम. स्कूल में हम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ COVID-19. The first word is bending. So the meaning of bending is leaning. 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 Bending का मतलब होता है leaning, झुका हुआ. Number 2, strong part of the tree. Strong part of the tree is trunk. Trunk is trunk. Number 3 is worried. So worried का एक और मतलब था उसमें anxious. 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 Number 4, a person who works on ship or boat. Yes, it's sailor. 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 A person who works on ship or boat is called sailor. The next, a person who is not kind. Cruel. 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 So dear student, here we have done exercise D6. Now I will discuss the next exercise. D7. Write the opposite of the following word. Follow the example. तो हमें वर्ड्स के अपोजिट लिखने हैं. वर्ड, these are the words. यहाँ पर हम अपोजिट लिखेंगे. One is already done for us. First one, lovely. Lovely means opposite. Sorry, the opposite of lovely is ugly. Number 2, little. The opposite of little is big. Number 3, cry. Laugh. 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 Happy. Sad. SAD, sad. Then love. The opposite of love is hate. 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 Young. Old. The next one is cruel. The opposite of cruel is kind. 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 Lost. किसी चीज को खो देना. Found. 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 The next is selfish. So the opposite of selfish is selfish. Unselfish. 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 Now I will discuss the next exercise, value based question. Look at the picture. The tree says something. Someone is killing it. कुछ बोल रहे हैं, कुछ मारने की कोशिश कर रहा है. Help, someone is killing me. प्लीज़ मुझे बचाइए. तो ये ट्री हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें, आप प्लीज़ मत काटिए, हमें बचाइए, कोई हमें मार रहा है. If you cut a tree with an axe, it gets killed. But we harm the tree in many more ways. और साथ में ये भी बोल रहे हैं
जब हम किसी ट्री को एक्स से काटते हैं, एक्स यहाँ पर आपने कुल्हाड़ी देखा है, उससे काटते हैं तो वो मर जाता है, लेकिन हम बहुत से और भी तरीके हैं जिससे उन्हें हार्म पहुँचाते हैं. दीज आर द अदर वेज, अलग वे हैं जहाँ जिनके थ्रू हम नोटिस भी नहीं करते कि हम उन्हें हार्म पहुँचा रहे हैं. कौन कौन से हैं? वी cut away too many branches of a tree along with the leaf on them. हम बहुत से ऐसी जो ब्रांचेस को काट देते हैं जिसके ऊपर पत्ते होते हैं, तो वो हमें नहीं काटना चाहिए. एक किस्म से हम उनको हार्म पहुंचा रहे हैं. नंबर 2, द ग्राउंड क्लोज टू द ट्री इज सीमेंटेड. और जो ट्री के बिल्कुल पास का ग्राउंड है उसको हम चारों तरफ से सीमेंटेड कर देते हैं. मतलब हमें सीमेंट भी नहीं लगाना है वहाँ पर. अगर हम करेंगे तो वो भी हार्म पहुँचाता है ट्री को. नंबर 3, वी डिग द अर्थ नियर द रूट ऑफ द ट्री. और कई बार हम क्या करते हैं, ट्री के बिल्कुल जहाँ पर रूट्स होते हैं वहाँ पर खुदाई करते हैं. तो हमें जहाँ पर रूट्स होते हैं वहाँ पर भी खुदाई नहीं करनी है, वो भी हार्मफुल रहता है ट्री के लिए. वी पुट एडवर्टाइजमेंट ऑन ट्री विद नेल. और हमने बहुत बार नोटिस किया होगा आप लोगों ने भी कि पेड़ के ऊपर बहुत से लोग एडवर्टाइजमेंट जो है नेल मीन्स कीलों के साथ चिपकाते हैं. बहुत बड़े 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 होर्डिंग्स होते हैं, आपने देखा होगा, वो ट्री पे टांग देते हैं. ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, ट्री को हार्म कर रहे हैं. ट्री गिव अस सो मच. तो ट्री हमें बहुत चीज़ें देते हैं. शुड वी नॉट एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू देम. क्या हमें उनकी तरफ अपना ग्रेटिट्यूड या धन्यवाद उनको नहीं कहना चाहिए. सो डिस्कस इन द क्लास हाउ वी कैन repay for the kindness of the tree. One example is given below. We can water the sapling planted near our house. तो हमें क्लास में तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कैसे जो है उनको धन्यवाद बोलना चाहिए ट्री को. कैसे हम जब अपना काइंडनेस उनकी तरफ शो करेंगे, और कैसे कर रहे हैं कि हमें जो है जितने छोटे छोटे पौधे हैं, सैपलिंग्स हैं, उन्हें पानी ज़रूर देना चाहिए जो हमारे घर के आसपास होते हैं. नाउ देयर इज़ वन एक्टिविटी दैट यू विल डू इट बाय योरसेल्फ. सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिखाया जाएगा, बाकी आप खुद करेंगे. थिंक ऑफ अ स्लोगन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री एंड राइट इन द बॉक्स प्रोवाइड. यू मे यूज़ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स. यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है और आपको स्लोगन बनाना है और उन स्लोगन्स को नीचे लिखना है जो ब्लैंक्स दिए गए हैं. और आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, जैसे ग्रो मोर ट्रीज, स्लोगन बन गया. नेक्स्ट इज डोंट कट द ट्रीज. ठीक है, तो नेक्स्ट है वो आप खुद करेंगे. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.